رجوع کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج ان لوگوں کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے جو خداوند کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت ہی اہم پیغام ہے تاکہ وہ اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور باقی ہم جو لوگ اس بابرکت عبادت میں شامل ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ پیغام باعث برکت ہو۔ آمین۔ آپ گنتی کی کتاب کھول سکتے ہیں میرے ساتھ، خداوند کے پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب، اور ہم 16ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ گنتی کی کتاب 11واں باب 16ویں آیت سے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں، میرے حضور جمع کر اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لے آ، تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ مرد خدا موسیٰ، جس کے ساتھ خدا روبرو بات چیت کرتا تھا، خدا نے دیکھا کہ مرد خدا موسیٰ جو ہے وہ میری خدمت کو ٹھیک طور پر سر انجام دے رہا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ موسیٰ جیسا شخص زمین پر ایسا حلیم شخص کوئی نہیں ہوا۔ خدا نے اس کی تعریف کی کہ وہ بہت ساری لوگوں کی باتیں سنتا، لوگ اس کے خلاف بڑبڑاتے، لوگ اس کے خلاف شکایتیں کرتے، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے، اور آج وہ لوگ جو خداوند کی خدمت میں ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ مرد خدا موسیٰ جو بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کر رہا تھا اور انہیں لے کر ملک مصر کی غلامی سے نکال کر اس وعدے کی سرزمین میں لے جا رہا تھا، اس شخص کے اس قدر جذبات خداوند کے ساتھ قربت اور اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے کسی دکھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ان کی کسی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ اس کے خلاف بڑبڑاتے تھے، چاہے وہ شکایتیں کرتے تھے، چاہے کچھ بھی کرتے تھے، اس پر بہت سارے بیجا الزام بھی لگاتے تھے۔ ایک بار مرد خدا موسیٰ نے ایک عورت بیاہ کر لے آیا، اس کی اپنی بہن اور بھائی، اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور خدا نے اس کے لیے، چونکہ خدا غیرت رکھتا تھا، اس کے ساتھ کلام کرتا تھا، اس کے ساتھ بات کرتا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا خدا صرف موسیٰ سے ہی باتیں کرتا ہے؟ کیا صرف اس کا ہی خدا ہے؟ وہ اس کے خلاف اپنے دل میں اپنی زبان سے بہت سارے نازیبا الفاظ بولنے لگے، جس پر خدا ناراض ہوا، اور اس کی بہن مریم جو ہے وہ کوڑی ہو گئی۔ اب اس کے خلاف اس نے بہت ساری باتیں کہی ہیں،
और जब वो कोढ़ से भर गई है, उसको पता चला है मर्द खुदा मूसा को, तो वो आकर खुदा की हुजूरी में शिफायत करने लगा, खुदा माफ कर दे इसको, इससे गलती हो गई है। खुदा ने कहा कि 8 दिन तक ये ऐसे ही रहेगी, इसलिए कि इसने मेरे बंदा की तौहीन की है, इसने मेरे खादम के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और बी केयरफुल रहे, जितने हम लोग चर्च में हैं जो सुन रहे हैं, खुदा अपने खादमों के बीच में होता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे अंदर हूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। इसलिए उसने कहा कि जो तुम्हें कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। मर्द खुदा मूसा खुदा की खिदमत में बढ़ रहा था, और हम देखते हैं यहाँ पर खुदावंद ने ही मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 इश्कास जो है, 70 मर्द जो है, उनको चुन ले ताकि वो तेरे साथ खिदमत में खड़े हो सके। ये खुदा ने मंसूबा बनाया है, ये खुदा की प्लानिंग के तहत होता है कि खुदा अगर किसी को कॉल करता है, खुदा किसी को बुलाता है, खादम किसी को अनाइट करता है, अपने साथ खिदमत में खड़ा करता है कि आप मेरे साथ खुदावंद की खिदमत में मेरे साथ हिस्सेदार बने, तो उस शख्स के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उसको किसने बुलाया है? खुदा ने बुलाया है, खुदा के खादिम ने बुलाया है। जब मर्द खुदा एलिया ने मर्द खुदा अलीशा को बुलाया, तो खुदा का कलाम बयान करता है वो सब कुछ खत्म करके छोड़कर अपने उस्ताद के, अपने खादम के, अपने उस नबी के, अपने खुदावंद के मंसूब के पीछे चल दिया। इसलिए यीशु मसीह ने जिनको बुलाया उनको कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने मेरे साथ रहना है और हमने मिलकर इस कलाम को सीखना है, इसकी बरकत हमारे लिए है। और यीशु मसीह ने जब उन लोगों को बुलाया तो उसके बाद उसने कलाम में लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब खोले, खुदा के पाक कलाम में से पढ़े 16वीं आयत से खुदा क्या फरमाता है हमारे लिए। बाइबल मुकद्दस में बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपने शागिर्दों की रहनुमाई कर रहे हैं। हम सब जो आज इस अजीम खिदमत के लिए खुदावंद के सुपुर्द होने जा रहे हैं, हम जो आज खुदावंद के इस खास पैगाम के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं, उसके मंसूबे के तहत यहाँ पर आए हैं। कि मर्द खुदा मूसा को खुदा ने क्या कहा? आवाज नहीं आई, मैं ऊंचा सुनता हूं। कितने लोगों को? अच्छा, आपकी आवाज जितनी ऊंची होगी ना उतना ज्यादा आपकी खुदा की हुजूरी में बरकत होगी। आमीन, हालेलुया। कितने लोग? 70 लोग। उसने कहा इनको क्या कर? मुकर्रर कर दे, इनको चुन ले, इनको मसा कर दे, इनको खिदमत सौंप दे, ताकि ये तेरे साथ कौम का बोझ उठाए। कितनी बड़ी बात है अनॉइंटेड लोगों के लिए। वो क्या करते हैं? खुदा के लोगों का अपने ऊपर बोझ उठाते हैं। आप गुनाह करते हैं, आप गलतियां करते हैं, आप पाप करते हैं, आप बदियां करते हैं, खुदा के खादम खुदा की हुजूरी में आपके बोझ उठाते हैं, आपके लिए शिफायतें कर रहे होते हैं, आपके लिए रो रहे होते हैं, आंसू बहा रहे होते हैं। ये शख्स गुनाह में ना मर जाए, ये हलाकत में ना चला जाए, ये दोज़ख में ना चला जाए, ये जहन्नम में ना चला जाए, ये अजाब में मुब्तला ना हो जाए। खुदा इसकी आदत चेंज कर, इसके ख्यालात बदल, इसकी सोच बदल। उनको आपसे क्या वास्ता है? वो आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए वो आपका बोझ अपने ऊपर लेते हैं और आपके लिए खुदा की हुजूरी में शिफायतें करते हैं। मर्द खुदा मूसा खुदा की हुजूरी में शिफायतें करता। ये लोग बार बार खुदा को तंग करते थे, दुख देते थे, गुनाह करते थे, बुड़बुड़ाते थे,
آج آپ کی بچت ہے تو انہی خادموں کی بدولت ہے جو خدا کی حضوری میں شفاعت کرتے ہیں. خدا نے کہا میں ان سرکش لوگوں کو جو بار بار گناہ کرتے ہیں اور بدی سے باز نہیں آتے ہیں، میں ان کو ختم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، مار ڈالوں گا. صرف موسیٰ تو اور تجھ میں سے جتنے آگے بچے ہوں گے میں ان کو اس وعدے کی سرزمین میں لے جاؤں گا، تم کو اپنی قوم بناؤں گا، ان لوگوں کو نہیں. مرد خدا موسیٰ پھر خدا کی حضوری میں آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، خدا معاف کر ان کو، اگر ان کو نہیں معاف کرنا تو میرا بھی نام کتاب حیات میں سے نکال دے. خدا کے خادم اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ کا، اتنا درد لیتے ہیں آپ کا، اتنی تکلیفیں سہتے ہیں آپ کے لیے، اتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس قدر ہمدل کر دیتے ہیں کہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اس نے کہا نکال دے مجھے بھی کتاب حیات میں سے میرا نام، مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہلاک کر دے اگر ان کو معاف نہیں کرنا. آپ کی بدیاں، آپ کے گناہ، آپ کے پاپ یسوع نے اپنے خون سے دھوئے ہیں، تو بھی مقدس یوحنا کی انجیل کے باب کے اندر بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے، خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا جن کے تم گناہ معاف کرو گے ان کے معاف ہوں گے، جن کے تم قائم رکھو گے ان کے قائم رہیں گے. یہ خدا کے خادم ہی ہیں جو آپ کے لیے روتے ہیں، شفاعتیں کرتے ہیں، آپ کے گناہ مٹ جائیں، آپ کے پاپ مٹ جائیں. ان کو کہہ دیتے ہیں جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، ان کے بخشے جاتے ہیں. زبور 32 کے اندر کہا گیا مبارک ہے وہ جس کے گناہ ڈھانکے گئے اور جن کی خطاؤں کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. وہ شفاعتیں کون کر رہے ہیں؟ یہ خادم ہی ہیں جو خداوند کے لیے چنے جاتے ہیں، جو خداوند کے لیے اس کی خدمت کے لیے مقرر ہوتے ہیں. خداوند یسوع نے کیا کہا ان سے؟ آؤ ذرا بڑھتے ہیں کلام میں. مقدس یوحنا 15واں باب اس کی 16ویں آیت سے. شاباش پڑھیے، کوئی بھی آپ میں سے بائبل مقدس پڑھ سکتا ہے، پڑھنے کی برکت حاصل کیجیے. یوحنا کی انجیل 15 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا تاکہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے. آمین، ہاللیلویہ. خدا کی سمسی نے کیا کہا؟ میں نے تم کو چنا ہے اور تمہیں چننے کے بعد مقرر کیا ہے. خدا کی سمسی نے 20 شاگردوں کو چنا. کتنے شاگردوں کو چن کر اس نے مقرر کر کے بھیجا؟ اور بھائی 70 کی بات ہو رہی ہے. 70 کو اس نے دو کر کے بھیجا. جو 12 تھے ان کو رسول کا لقب دیا تھا. پہلے 70 کو خداوند نے مقرر کیا، ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خدمت کر کے آؤ، جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اس کو سر انجام دو. اور وہ گئے اور انہوں نے جا کر کام کیا، خدمت کر کے آئے. خداوند نے ان کو دیکھا، ان کی خدمت دیکھی، ان میں سے خداوند نے 12 کو چنا اور ان کو رسول کا لقب دیا. آج جو چنے جاتے ہیں آپ کو پتہ 12 میں سے بھی کچھ خاص تھے اس کے ساتھ جو ہر وقت رہتے تھے خاص موقعوں پر. ایک جگہ پر 3 اور ایک جگہ پر 4، 3 یا 4 جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جو استاد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، برکات بھی وہی پاتے ہیں، انائٹڈ بھی زیادہ وہی ہوتے ہیں، مسا بھی زیادہ انہی کی زندگی میں سے ظاہر ہوتا ہے، قدرت بھی انہی کی زندگی میں سے ریلیز ہوتی ہے اور لوگ ان کے وسیلہ سے ہی زیادہ برکات پاتے ہیں. جڑے لوگ پاتی تو دعا کروا کے بعد ہیں کہیں پہ ہوں گے، بعد لگ دے نہیں. ایسے لوگ بس وقتاً کچھ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں رہتا پاس. اس لیے کہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے رسولوں کے اعمال کے 2 باب میں کہ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور بپتسمہ
बपतिस्मा लेते हैं उनके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। उनको कहा गया कि वो बाइबल मुकद्दस की तालीम ले, खुदा के रसूलों से रफाकत रखे, वो मिलकर रोटी तोड़े और दुआ में मशगूल रहे। कितनी बातें कही? हेलो, कितनी बातें कही? 4। कौन कौन सी? तालीम। सबसे पहले तालीम है। जब आप खुदा यीशु को कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जब पादरी साहब बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज में तालीम देते हैं, आप अगर बपतिस्मा लिया हुआ है, बाइबल की तालीम नहीं लेते हैं, तो आप किसी भी जगह पर कहीं पर भी स्लिप हो सकते हैं। अगर आप कायम रहना चाहते हैं तो खुदा के कलाम की तालीम लें और फिर उसके बाद खुदा के खादमों के साथ फेलोशिप रखें, रफाकत रखें, और फिर उसके बाद आखिराकत लें, रोटी तोड़े और फिर दुआ में मशगूल रहे। कितनी बातें? 4। कौन कौन सी? हाँ जी, तालीम लेने, शाबाश, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, वैसे लोग 4 करना नहीं आते, दुआ में मशगूल रहना। इसलिए बहुत जरूरी बाइबल सीखो, खुदा का कलाम सीखो। यीशु आने वाला है। यीशु ने कहा जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है ना, वही मेरे साथ आसमान की बादशाही में जाएगा। तो अगर हमने यीशु को खाली कबूल ही किया है, बपतिस्मा लिया है, तो फिर इंतहाई जरूरी है कि हम इन बातों को समझें ताकि खुदावंद हमको जिम्मेदारी दे, खुदावंद हमके हमारे सुपुर्द कुछ करे, हमें कुछ सौंपे। खुदावंद के कलाम में लिखा है उसने हमें कौन सी खिदमत सौंपी है? भी नहीं पता, जब करते हुए जब हम पता है। खुदा के कलाम में लिखा है उसने हमें मेल मिलाप की खिदमत सौंपी है कि हम क्या करें? एक दूसरे से मोहब्बत से रहें। यीशु ने कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं और मेरा हुक्म यह है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है। और इसलिए खुदावंद ने जब आप पर खुदा ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, आपके सुपुर्द कुछ करता है, आपको कुछ सौंपता है, आपको कुछ देता है, और जब आपके पास कुछ आ जाता है तो तभी आप अपने मालिक के लिए काम कर पाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं लोग जॉब्स करते हैं, लोग चर्च में काम करते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं बस दुआ करके चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास चर्च की चाबी होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास चर्च का खिदमत के लिए बहुत सारा सामान उनके पास होता है, उनके पास गाने के लिए, बजाने के लिए खिदमत होती है, उनके पास चर्च में सफाई करने की खिदमत होती है, उनके पास जूते सीधे करने की खिदमत होती है, उनके पास कलाम सुनाने की खिदमत होती है, उनके पास बदबूओं को निकालने की खिदमत होती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें 9 नेमतों का जिक्र मिलता है और हर एक को अलग अलग खुदा के कलाम में लिखा है कि लियाकत के मुताबिक खुदा उन्हें देता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा फेलोशिप खुदावंद के साथ होती है वो उसी कदर खुदावंद से बरकत पाता है। जितना ज्यादा कोई खुदावंद की कुर्बत में रहता है, उस्ताद के साथ अटैचमेंट रखता है, अपने ममसू के साथ कायम रहता है, खुदा उसको बरकत देता है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है मर्दे खुदा अलीशा ने मर्दे खुदा एलिया से कितनी अर्निंग पाई, कितना मसा पाया, उससे भी ज्यादा। कितनी बड़ी बात है। खुदा आपको आपके खादम से ज्यादा बरकत देना चाहता है, ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है, ज्यादा अनाइंटिंग देना चाहता है, ज्यादा बरकत देना चाहता है। आप इस जिम्मेदारी को तो लें। अगर आप
बाबू साहब हैं अपने टाई सही लगाई, आपको पाल साहब कह दें जूते सीधे करो थोड़ी देर शान से फर्क पै जाना। मैं बाबू जी थे मैंने कहने जूतियाँ सीधे करो। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, तुम सब इक्वल हो, बराबर हो। बड़ा वो होगा जो सबकी खिदमत करेगा, जो सबका खादम होगा। आप पादरी साहब को बुलाते हैं कि पादरी साहब आपने आना है, हमारे घर में 6 बजे इबादत है, 7 बजे इबादत है। पादरी साहब आ जाते हैं, आपकी अभी देख पक रही है, आपके भी मेहमान नहीं आए हैं, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। खुदा को बुलाया है और लोगों के इंतजार में बैठे हैं। खादम को बुलाया है और राह लोगों की तक रहे हैं। गौर कीजिए, खुदावन ने जिनको जो खिदमत दी है उनका काम है उस खिदमत को बखूबी सरंजाम दे। जो काम आपके सुपुर्द खुदा ने किया है आप उसको बखूबी सरंजाम दे, ये जान कर करें कि ये किसके लिए कर रहे हैं, अपने खुदावन के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोग खुदावन से बरकत पाते हैं। मर्द खुदा अलीशा क्या करता था? पिंडों आए बाइबल नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते। उसके हाथों पर पानी डालता था, अपने उस्ताद के हाथ पांव धुलाता था, उसकी खिदमत करता था। और खुदा का कलाम हमें बयान करता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि उसने खिदमत के वसीला से, अपने उस्ताद के साथ जुड़े रहने के वसीला से, उस्ताद ने कहा बेटा मुझे काम है, मैंने अगले शहर जाना है, तू ऐसा कर तू यहाँ ठहर जा। उसने कहा नहीं उस्ताद, तेरी जान की कसम है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। कितनी बड़ी बात है। क्या कहता है? तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। बाकी सब कुछ छड़ सकता है पर तेनू नहीं छड़ सकता। जो उस्ताद से कुछ पाना चाहता है, लेना चाहता है, उसकी खिदमत से बरकत हासिल करना चाहता है। इब्रानियों के खत के 13वें बाब में वाज़ेह पैगाम दिया गया है, अपने पेशवाओं के ताबे रहो, जैसे वो खिदमत करते हैं उनकी खिदमत को देखो और उनके मुताबिक चलो। इसलिए मर्द खुदा मूसा, खुदावंद यीशु मसीह, पौलुस रसूल हमें खिदमत के दर्जात में बढ़ने के लिए खुदा के कलाम की बातें सिखा रहे हैं। खुदा का पाक रूह आज हमारी रहनुमाई कर रहा है कि ये वो लोग थे जो कौम को लेकर, कलीसिया को लेकर, चर्च को लेकर चल रहे थे, लोगों को खुदावंद में बढ़ा रहे थे। इफिसियों का खत 4था बाब खोले जरा। खुदा के कलाम में से हम देखते हैं खुदा यहाँ पर हमारे साथ क्या बात करता है, क्योंकि चर्च में खुदावंद ने सबको मुख्तलिफ बरकत और नेमतें दे रखी है। क्या हम उन बरकत से लुत्फ उठाते हैं? क्या हम उन बातों में कायम रहते हैं? क्या हम उन खिदमात को जो जो हमारे सुपुर्द की जाती हैं उनको कर पाते हैं? कलाम में लिखा है, पढ़िए जरा 11वीं आयत से। अगर किसी को हवाला मिले और वो सामने आके जरूर पढ़ सकता है। इफिसियों 4था बाब उसकी 11वीं आयत से। इफिसियों 4था बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और बाज को उस्ताद बना कर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। पाक कलाम पढ़ा गया, सुना गया, हमें समझ आए। आमीन। हमने सुना खुदा ने क्या किया, कलीसिया में से कुछ लोगों को कौन सी खिदमत दी? रसूल की। एक तो पता नहीं, आवाज सही आ रही है? आवाज साफ आ रही? तो फिर कलाम की समझ आनी चाहिए। कौन सी खिदमत दी? रसूल की, फिर नबी की, फिर मुबश्शिर की, फिर चरवाहे की और फिर
उस्ताद की इन 5 खिदमतों के वसीला से खुदावंद क्या करता है, मुकद्दस लोगों को जो खिदमत गुजारी का काम करते हैं, मुकद्दस लोगों को कामिल करने के लिए इन 5 लोगों को इस्तेमाल करता है, ताकि इनके वसीला से लोग क्या बने, मुकद्दस लोग क्या बने, कामिल बने। मुकद्दस लोगों को किस चीज की जरूरत होती है, कामलियत की। जो अनाइंट किए जाते हैं वो मुकद्दस हो जाते हैं, वो सेठ बन जाते हैं। सेठ नहीं बन जाते, की बन जाते, सेठ। कई मखसूस हो गए अपने को सेठ समझना शुरू कर, मैं तो चौधरी बन गया हूं, मैं काम में नहीं गिरजे झाड़ भी नहीं ला सकता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें तरक्की के लिए बुला रहा है। ये वो 5 लोग हैं जो चर्च को क्या करते हैं, बरकत देते हैं और उनको कामलियत की तरफ लेकर आते हैं, ताकि वो जो अनाइट किए गए हैं, वो जो मसा किए गए हैं, वो जो मुकद्दस लोग हैं, वो कामिल बन जाए। और जब वो कामिल बनेंगे तो खुदावंद का बदन तरक्की करेगा, कलीसिया तरक्की करेगी, खुदा के लोग बढ़ेंगे और खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। आपको ये भार उठाना पड़ेगा, आपको ये बोझ उठाना पड़ेगा। आप कले पादरी दे लाग छड़ने चल ठीक है, पादरी जेड़ा मतलब पादरी साहब ऐ काम करो, साडा ऐ काम करो, ऐ करो, ऐस मसले को पादरी साहब के साथ खड़े हो जाए। जो लोग अनाइट होकर खड़े होते हैं वो उसके साथ मिलकर बोझ उठाते हैं उसका, उस खिदमत को जो खुदा ने उसके सुपुर्द की है, उस खिदमत को वो करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। वो हमारा लीडर है, वो हमारा पासबान है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा रहनुमा है, वो हमारा राहबर है। हम उसकी रहनुमाई में चलें ताकि हम कामिल बन जाएं, मुकद्दस लोग क्या बन जाएं। आप जो अनॉइंटेड लोग होंगे, आप इनके वसीला से क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, कामिल। यीशु मसीह ने कहा कामिल शख्स बातों बातों में खिताब नहीं करता। हालेलुया। जो मसा हो जाता है, जो चुना जाता है, वो बातों बातों में खता नहीं करता, वो गलती नहीं करता, मिस्टेक नहीं करता। वही शख्स कामिल बनता है। जब वो कामिल बनता है तो कलीसिया बढ़ती है, खुदा का बदन तरक्की करता है। वो चाहे पहले जैसे भी जिंदगी गुजार रहा होता है, जब खुदा में आ जाता है तो उसकी आदत और उसके ख्यालात, उसकी सोच, उसका रवैया बदल जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें, हेलो, यीशु ने क्या कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा। यीशु ने क्या कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, आदमगीर बनाऊंगा। और फिर यीशु ने यह भी कहा जिसने मेरे पीछे आना है अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए, मेरे पीछे आए। जो उस्ताद कहता है उसके मुताबिक वो चले, ना कि पादरी लोगों को गला कर लग जाए। कलाम में लिखा है शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता। अगर वो कामिल हो जाए तो उस्ताद की मानिंद हो सकता है। हालेलुया। इसलिए कामिल लोग खुदा की हजूरी में जब बढ़ते हैं तो कलीसिया वजूद में बढ़ती है, कलीसिया तरक्की करती है, सरफराज होती है। इसलिए खुदा ने खादमों को ही कहा है कि वो कलीसिया में से लोगों को चुने, देखें कि कौन लोग जो है वो उनके साथ उनकी खिदमत में खड़े होते हैं। इसलिए उनको कहा गया पहले उनको चेक करो। कुछ लोग हमारे साथ खिदमत के लिए खड़े होना चाहते हैं, बाद में पता चलता है वो कहीं और निकल गए, वो वफादारी नहीं। जब वो वफादारी नहीं है तो उनको खादम कैसे खिदमत सौंप सकता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा एक मुख्तार मुकर्रर किया मालिक ने
اور اس نے اس کی جو کچھ لوگوں پر بنتا تھا اس میں سے بددیانتی شروع کر دی. یسوع نے کہا جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگا، جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ زیادہ میں بھی بد دیانت ہوگا. اس لیے کہا گیا پہلے لوگ چیک کیے جائیں، روحوں کو پرکھا جائے کیا وہ اس لائق بھی ہے کہ ان کو انائٹ کیا جائے، ان کو خدمت سونپی جائے، ان کو خداوند کا کام دیا جائے، ان کے ذمہ کچھ ذمہ داری لگائی جائے. اس لیے جو انائٹڈ خادم ہوتا ہے، جو خدا کا چنا ہوا خادم ہوتا ہے، جو خداوند کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو چیک کرتا ہے ہر حوالے سے، خدمت میں، کاموں میں، آنے جانے میں، رہنے سہنے میں، بات چیت کرنے میں، کہ کیا وہ کاملیت کی طرف بڑھ رہا ہے کہ نہیں. جب وہ بڑھنا شروع کرتا ہے اس کے بعد اس کو چن لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو مقرر کیا جاتا ہے کہ آج سے تو چرچ میں ایلڈر ہوگا، آج سے تو چرچ میں ڈیکن ہوگا، آج سے تو چرچ میں پاسٹر ہوگا، آج سے تو چرچ میں مبشر ہوگا، آج سے تو چرچ میں کوائر ممبر کے طور پر کھڑا ہو سکتا ہے، آج سے تو چرچ میں چرچ کی خدمت کو سر انجام دے سکتا ہے، آج سے تو گیٹ پر کھڑا ہو کر آنے والے لوگوں کو ویلکم کر سکتا ہے. پہلے ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. اور جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو یہ خدمت سونپ دی جاتی ہے. کلام میں لکھا ہے تسلونیکیوں کے خط کے اندر 5ویں باب میں اس کی 12ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اور اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو. اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ. خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو، بلا داغا دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. آمین. ایسے لوگ کامل ہوتے ہیں، ایسے لوگ کمال کی طرف بڑھتے ہیں، ایسے لوگ کلیسیا کی بڑھوتی کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر آپ کلیسیا میں آتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، خداوند کی خدمت کو کرتے ہیں، خداوند کا کام آپ کے ذمہ لگایا جاتا ہے، یا آپ چاہتے ہیں مجھے ذمہ داری دی جائے، تو ان باتوں پر پورا اترو. خادم آپ پر ٹرسٹ کر سکے، جہاں آپ کو کھڑا کرے، جب تک آپ کو وہاں سے جانے کے لیے نہ کہے وہاں رکے رہو. یہ نہیں خادم اس طرف گیا اور آپ اس طرف بولے چلو آئے گا پھر ہو جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کمپنیز میں لوگ کیا کرتے ہیں، جاب کرنے والے لوگ اچھی طرح ہیرا پھیری کرنی جانتے ہیں. جب مالک آتا ہے تب کام کرنے کی چال اور سپیڈ فرق ہوتی ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے. اور جب مالک گیا، مینیجر گیا، بوس گیا، پھر خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ ایماندار رہیں، اس لیے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. جو کام کرو جی سے یہ جان کر کہ کس لیے کر رہے ہو. ہیلو، کس کے لیے کر رہے ہو؟
खुदावंद के लिए। हालेलुया। आपकी खिदमत कौन देख रहा होगा? खुदा देख रहा होगा। खुदा आपको वॉच कर रहा है, खुदा आपको देख रहा है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि हमने अपने खादमों के क्या रहना है? ताबे रहना है। जो तुम्हारे पेशवा है, जो तुम्हें नसीहत करे, जो तुम्हें बात कहे, कलाम में लिखा है उनकी बात को आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड आना चाहिए। या तुसी पादरी दी मानते नहीं, इस वास्ते तुसी बोलते नहीं है। हेलो, क्या कहा खुदावंद ने कि अपने खादम की बात को, आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए। लगता आप नहीं मानते पादरी। क्या कहा खुदा ने? अपने पादरी की बात को मानो। अगर आप मानेंगे तो आप खुदावंद यीशु की बात मान रहे हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम बयान करता है जिसने मेरे छोटे भाइयों की बात मानी, जिसने इनकी खिदमत की, जिसने इनकी इज्जत की, यीशु कहता है मैं उन्हें आसमान पर अजर दूंगा, उन्हें बरकत दूंगा, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। इसलिए जिनका चुनाव होता है, जो चुने जाते हैं, वो बड़ी कदर के लायक है और उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी कदर खुदा की निगाह में बनाए रखें, अपने खादम की निगाह में बनाए रखें, ताकि खुदा उनके हुजूर से इज्जत पाए। और आपस में कैसे रहें? कैसे रहें? मोहब्बत करें, प्यार करें। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। यीशु ने हमसे कितना प्यार किया कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। यीशु ने कहा ऐसे ही प्यार करना है कलीसिया से, कि अपनी जान उसके लिए दांव पर लगा देते हैं। खुदा के जो खादिम हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं? खुदा की हुजूरी में शिफायत, मिन्नत, फरियाद, इसलिए कि वो हमारा भार उठाते हैं, हमारा बोझ उठाते हैं, क्योंकि वो बदी नहीं करते, वो गुनाह नहीं करते। लोग उन पर इल्जाम लगाएं, लोग उनके खिलाफ बातें करें, लोग जैसे भी हो वो बात करें, पर वो अपने मकाम को नहीं खोते, वो अपने मकाम पर खड़े रहते हैं। इसलिए कि उनको पता है कि मैं खुदा की तरफ से बुलाया गया हूँ, मुझे खुदा ने खिदमत सौंपी है, किसी शख्स ने नहीं दी। इसलिए अपने मकाम पर खड़े रहकर खुदावंद को जलाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदावंद यीशु के लिए तालियां बजाएं जिसने हमारे लिए जान दी है, जो हमारा अच्छा चरवाहा है। उसने नमूना दिया कि हम इस तरह की खिदमत करें। कलाम में लिखा, यीशु ने कहा जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो सबका खादिम बने। इसलिए जरूरी है, आओ आज की शाम हम जो खुदावंद की हुजूरी में आए हैं कि हम खुदावंद की खिदमत को ले सके। या हम चाहते हैं हमारा खादिम हमें खिदमत सौंपे, हम कोई काम करें तो पहले उसका ट्रस्ट बहाल करें, वो आप पर एतमाद करने वाला है, वो आप पर एतमाद कर सके कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये इस काबिल है और मैं इसे यहाँ खड़ा करूँगा। क्योंकि खुदा का कलाम खादिमों के साथ हमेशा बात करता है, खुदा का रूह उनको उभारता है कैसा करो। आज खुदा के खादिम पास्टर नज़ीर को खुदा के रूह ने उभारा है इस खिदमत के लिए कि वो ये खिदमत अपने बच्चों में सौंपे, अपने कलीसिया के रूहानी फर्जंदों को खिदमत दे, और जो खिदमत वो उनको दे वो उस खिदमत को ये जानकर करें कि हमारे सुपुर्द हुई है कि ये किसकी खिदमत है? हमारे खुदावंद की है। वो अपने खुदावंद को अपने खादिम के ताबे रहकर उस खिदमत को सर अंजाम दे। आओ हम खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे, खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम